Hello, students. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar, and welcome back to our English class. So, students, we have already completed chapter number 17, that is modals, right? As we studied will, can, would, could, right, and may. So all those are models as we studied in the previous video, and as the chapter was quite small, so we were all done in one video itself. I've also done the exercises along with it, and I have also sent the PDF of those exercises in your group. So please do complete it in your textbook, and let's move on towards our next chapter, that is sentences, and this would be the last chapter of our PT3 syllabus, okay, for grammar. So let's see chapter number 20, sentences, page number 86. So students, what do you mean by a sentence? Well, sentence means group of words. What do you mean? A group of words which has some sense. Okay. It is said to be group of words which has some sense. Let's see the conversation between these two of them, right? That is Grandma and GT. So let's see what they are talking about. It's a lovely day to be in space. So they are expressing their happiness over here, right? It is lovely day to be in space. Are you listening to the CD from Mars? So this is a question which GT is asking to Grandma. And what is Grandma saying? Yes, it is quite nice. So that is a reply. So GT says, tell me your favorite song. So GT is again asking him something, but it's not a question format. Tell me your favorite song. So what does Grandma says? What a wonderful world. So that might be the name of the song which he is listening to, or which he likes to listen, or that might be his favorite song. Okay. Now, so these are some forms of sentences. If you notice, one has question mark, right? You can see over here. See. One has question mark, one has full stop, one has exclamation mark, right? So because they end in something different, and that's why we are using different punctuation for different sentences. So in this chapter we are going to learn different types of sentences. There are many different types of sentences and categorized into major 4 of them. So we are going to study those types of sentences. So before moving ahead, let's first see what do you mean by a sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. मतलब कुछ group of words, कुछ words जिनको हम साथ में रखते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है, right? It has a complete meaning. Then such group of words is called sentence. Now let's see some of the sentences over here. Are you listening to the CD from Mars? Yes, it is quite nice. Tell me your favorite song. What a wonderful word. Just as we saw over here, right? A conversation which was given over here. वही 4 sentences यहाँ लिखे हुए हैं, right? All 4 group of words above are sentences. क्यों sentences है? क्योंकि हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसका एक मीनिंग है. Are you listening to the CD from Mars? So there is a meaning to it, right? कि तुम क्या CD सुन रहे हो जो मार्स की है वो. तो उसने कहा yes, it is quite nice. Now what is he saying? Tell me your favorite song. That is also having a complete sense. And Grandma then replies, what a wonderful world. So that is also one group of words which is a sentence, and it does make a sense. Now if you see, as I told you, all 4 of them have different punctuation marks. These two have same and this has different one, right? So we can make it out that each sentence over here is performing a different function. One is used for asking question,
one is used for giving answer, and one is used to show the feeling, right, or the happiness while listening that song. So here we can see that all four group of sentences above are performing a different function. So based on the function they perform, they are divided into four types. कितने types में divide होता है sentence? Four types में. So let's see what are they. Okay, so based on the function they perform, they are divided into four types. पहला है assertive, फिर imperative, interrogative and exclamatory. We will study one by one all four of them. Okay, लेकिन यहाँ पे जो sentence है उसको divide किया हुआ है. So let's see over here. पहला sentence है mother gifted me a CD. It's a simple statement. ठीक है, कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट जो ना ही क्वेश्चन है, ठीक है, और ना ही कोई एक्सप्रेशन है या कोई फीलिंग्स है, ठीक है, तो उसको हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह लेते हैं. सो जब हम कोई चीज़ नॉर्मल वे से कहते हैं देन दैट बिकम्स अ स्टेटमेंट एंड दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ assertive sentence. Okay, then second one is, are you listening to music? Now what do you think, what is this? We are asking a question. It's obvious. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड वन इज, प्लीज लेट मी ड्राइव योर कार. नाउ एज यू सी देयर इज एन यूसेज ऑफ वर्ड प्लीज, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना. तो अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को कमांड देते हैं तो वो वाला कैटेगरी होता है imperative. Okay, and the fourth one is, how nice of you to greet her. Here you are expressing a surprise or an admiration. You are admiring somebody, right? आप किसी को compliment कर रहे हो या किसी की तारीफ कर रहे हो, right? How nice of you to greet her. And you can see the punctuation over here. That is an exclamatory mark. So when you use an exclamation mark, वो हो गया आपका exclamatory sentence. Okay, so there are four types: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. So I hope that you understood that what is the sentence and what are the types of sentence. So sentence is the group of words that make complete sense. It could be statements and questions. Okay, sentences वो है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और जो कंप्लीट सेंस जिसका होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं. अगर वर्ड्स अरेंज्ड नहीं है ठीक से और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं. ठीक है, सेंटेंस उसी को कहा जाता है जिसके अंदर जो वर्ड्स है वो प्रॉपरली अरेंज्ड है और उसका कोई मतलब होता है. नाउ नॉर्मली सेंटेंसेस आर ऑफ divided into two types, that is statements and questions. So let's see the types of sentences over here. Now as you see, sentences are divided into four of them. पहला है assertive. The first one is assertive. Assertive मतलब statement form. ठीक है, these are statements. और ये statements पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब पॉजिटिव जिसमें नॉर्मल सेंटेंस होता है वो, और नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट होता है या नेगेटिव मीनिंग होता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. राइट, सो असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव. वी आर गोइंग टू स्टडी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल फोर टाइप्स ऑफ sentences. The second one is imperative. imperative sentences में दो चीज़ें आती है, एक आता है कमांड और दूसरा आता है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट जैसे हम बोलते हैं प्लीज़ लगा के सेंटेंस, राइट. फिर जैसे कि प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, कैन यू प्लीज़ गेट मी सम वाटर, राइट. ये सारे प्लीज़ गेट मी सम वाटर, सॉरी कैन यू प्लीज़ गेट मी सम वाटर वो नहीं आएगा, वो तो इंटरोगेटिव हो जाएगा. प्लीज़ गिव मी सम वाटर और प्लीज़ लेंड मी सम मनी. ओके, दोज आर रिक्वेस्ट. और कमांड मतलब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, जैसे कि डोंट मेक नॉइस, सिट डाउन,
no talking, sit quietly, open the door, right? All those are commands. Now if you see, imperative में भी मोस्टली सारे स्टेटमेंट्स ही होते हैं, ठीक है? ये जो होता है और ये जो होता है वो स्टेटमेंट्स ही होते हैं, ओके? दीज ऑल आर स्टेटमेंट्स। लेकिन इसमें जो बोलने का तरीका होता है इम्परेटिव में वो अलग होता है। फिर होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस। अभी हम क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। एक होता है WH क्वेश्चन, मतलब WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, जैसे कि वॉट, व्हेन, हु, वेयर, वाई एंड विच। वी विल लर्न ऑल दोज थिंग्स, ओके? ये सारे WH वाले क्वेश्चन हैं, WH वाले वर्ड्स हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो सारे किस में आएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क होता है मतलब वो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन वो सेंटेंस में कौन सा टाइप आएगा? इंटरोगेटिव आएगा, ठीक है? वो कौन सा, और ये कौन से वाले फॉर्मेट में आएगा? क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ओके? फिर डू और डस से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, हमने आगे पढ़ा है, राइट? डू और डस, या फिर जो बी फॉर्म होता है इज, एम, आर, या फिर पास्ट टेंस है अगर आपका सेंटेंस तो हम डिड यूज़ करते हैं, और उसमें बी फॉर्म कौन सा वाला यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर, ठीक है? और फोर्थ वाला जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं, ये वाला, विच इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, इमोशंस एंड सरप्राइजेस, ठीक है? जैसे कि ओ, वी लॉस्ट अ मैच, और यू कैन से हुर्रे, वी वन द मैच, what a surprise, it's a lovely morning, what a beautiful day, राइट? ऐसे सारे वर्ड्स जो हमारे एक्सप्रेशंस या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं जो सेंटेंसेस, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और आपको याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है? सो विल स्टडी ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट वन, that is assertive sentence. Okay, let's see that topic. So I request you students to look on page number 87. So assertive sentences are used for making statements. मतलब क्या होता है assertive sentence? Assertive sentence says something, it says something, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। I went to sleep early, या फिर I'm going to school, or you can say my father वॉक्स टू ऑफिस डेली, राइट? ऐसी सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल चीज़ कहने के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है? मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं एक सिंपल सी बात बताने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड assertive सेंटेंस। एंड you need to remember that when we are writing an assertive sentence, at that time we always put a full stop at the end of it, at the end of an assertive sentence। मतलब हम जब भी assertive sentence लिखते हैं उसके बाद हमें कौन सा वाला पंक्चुएशन यूज़ करना है? फुल स्टॉप यूज़ करना है, ठीक है? ये हमारा पंक्चुएशन मार्क है जो हम assertive sentence के बाद लगाते हैं, ठीक है? assertive sentence मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट्स। अभी वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप इधर एग्जाम्पल देख सकते हो, आई कैन स्विम इन द रिवर। Now, if you see this sentence, I can swim in the river, this is a positive sentence, ठीक है? इसमें कुछ भी नेगेटिव या ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो सेंटेंस को नेगेटिव मीनिंग देता है वो। और ये एक सिंपल सी बात है जो कही जा रही है, I can swim in the river, it's a simple statement, and so it is called assertive sentence. If you see the second sentence over here, I cannot swim in the river. If you see this word cannot, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। लेकिन फिर भी ये कौन सा वाला टाइप है? असर्टिव सेंटेंस ही होगा, ठीक है? सो ये दोनों, आई कैन स्विम इन द वाटर एंड आई कैन नॉट स्विम इन द वाटर, ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हो कि आपका पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव है, ओके? सो यू कैन से कि असर्टिव सेंटेंस वापस दो में डिवाइड होता है, एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। जैसे कि आई कैन स्विम इन द रिवर एंड आई कैन नॉट स्विम इन द रिवर। आई कैन स्विम इन द रिवर इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव सेंटेंस एंड आई कैन नॉट स्विम इन द रिवर इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ओके?
So I hope that you are clear with assertive sentences. Now let's move on to page number 88. We are going to do exercise A. So look at these sentences and mark them as positive or negative. मतलब पॉजिटिव है तो P लिखना है और नेगेटिव है तो N लिखना है. और आपको क्या ध्यान देना है कि वो सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है. और ये सारे कौन से सेंटेंसेस है? सारे असर्टिव सेंटेंसेस है. क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो आपके जो सेंटेंसेस है सारे वो सब फुल स्टॉप में एंड होते हैं, राइट? All the sentences given over here, all 6 of them are having full stop at the end, but some are positive and some are negative. Let's see the first one. The earth is not stationary. मतलब earth stationary नहीं है. So what kind of sentence is this? Well, this is negative sentence, right? तो यहाँ पे हम लिखेंगे N for first one. The second one, Ganges, the Ganges is not the longest river. मतलब the Ganges सबसे लंबी नदी नहीं है. So again they have used not, and so this is also negative. Third one, the earth has 7 continents. कितने continents है अर्थ के ऊपर? 7. So ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है. It is cold in Antarctica. Now this is also again positive sentence because there is no such use of the words like no, not, never, right? Now next one, fifth. It does not rain much in Sahara. Now again there is a use of not, so this is a negative sentence. The Pacific Ocean is the largest ocean. So here we don't see any such usage of negative words like not or never. So this is again positive sentence, right? So you have to write down the answers in your textbook. Let's see exercise 2. The assertive sentences given in the column A are wrong. Correct them by changing them into negative sentences in column B. So the first sentence is, a very tall plant is called a shrub. Now this sentence is wrong. So we are going to add not to make it correct, right? So a very tall plant is not called shrub, it is called tree. तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? not ऐड करेंगे. ठीक है. Now let's see second one. Trees are a source of pollution, air pollution. Now this is a wrong statement, right? So what will you write? Trees are not a source of air pollution. As I am not able to write the full sentence, you just have to add not over here. और आप are not की जगह पर aren't भी लिख सकते हो. ठीक है. वो जो शॉर्ट फॉर्म है वो, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. Trees aren't a source of air pollution. They clean the air. Now let's see the third one. Coconut trees are the tallest trees in the world. Now that is not the truth. So what are we going to do? We are going to add not along with it. Okay. Coconut trees are not the tallest trees in the world. World already लिखा हुआ है तो वो नहीं लिखना है. और आप लिखोगे coconut trees, आर की जगह पर आप लिखोगे are not. Okay. The tallest trees in the world. Redwood trees are the tallest. The earth is a star. So here they have written no, and then we have to write the answer. The answer would be no. The earth is not a star. So what will you do? अभी no तो लिखा हुआ है, उसके बाद लिखोगे the earth is not a star. Okay.
So students, I hope you are clear with what are assertive sentences. So now let's move on towards the interrogative sentences. So now let's see the second type of sentences. Those are interrogative sentences, which are going to be used for asking questions. Okay. Now let's see interrogative sentence. They are used to ask question and normally end with a क्वेश्चन मार्क. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे हम लोग? क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे. ठीक है. सम क्वेश्चंस बिगिंस विद द वर्ड्स लाइक डू, डज, हैज और इज. मतलब ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है. राइट. ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है. और हम उससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं. अगर सेंटेंस में बी वाला वर्ब है, जैसे कि इज, एम, आर है या वॉज वर है, ठीक है, तो हम वही यूज़ करके क्वेश्चन बनाएंगे. और अगर वो नहीं है, मतलब बी वाला वर्ब, तो हम डू, डज यूज़ कर सकते हैं या फिर डिड भी आ सकता है. ठीक है. नाउ एंड दे हैव येस और नो आंसर्स. उसका आंसर क्या होगा आपका? नॉर्मली जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि डू यू लाइक टू स्टडी ग्रामर, तो आप येस और नो में आंसर दोगे. राइट. या फिर ऐसा बोलो कि आर यू इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन अ डांस कंपटीशन, सो यू वुड से येस और नो. राइट. तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं जो बिगिन होते हैं डू, डज, हैज़ और इज़, वैसे ही डिड भी आ सकता है. ठीक है. और इस मतलब इसकी जगह पर बाकी सारे भी बी वर्ब्स है, जैसे कि एम है, आर है, वॉज, वर. ठीक है. जो क्वेश्चंस इन सारे वर्ड से बिगिन करते हैं, नॉर्मली उनके आंसर्स येस और नो में होते हैं. ठीक है. मतलब आपको आंसर क्या मिलेगा? येस आई कैन, येस आई वॉन्ट टू, वैसा वाला. और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो WH वाले वर्ड से बिगिन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. WH words मतलब when, who, where, what, why, which, and then there is one more which you say how. Well, that doesn't come in WH question, but that is also one word which we use it for asking question. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ये WH वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं. अभी इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके आंसर्स आपको येस एंड नो में मिलेंगे, लेकिन ये बाकी के जो है हमने पढ़ा, डू, डज, हैज़, इज़, और जैसे मैंने आपको बताया बी वाले वर्ब्स है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर. राइट. तो उन सब चीज़ों से, या फिर मॉडल वर्ब्स है जो हमने अभी लास्ट में पढ़े. कौन से वाले मॉडल्स है? कैन है, कुड है, माइट है, विल, वुड, मे. राइट. वो सारे वर्ड्स भी हम यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं. हमने लास्ट ही पढ़ा है कि हमने क्वेश्चन कैसे बनाया था. सो यू माइट बी रिमेंबरिंग कि हमने कैसे बनाया था. राइट. बट लेट्स सी व्हाट इट इज़. Here there is an example of both the type. पहला example है do you like dinosaurs. Now here you can see the question is formed using do. ठीक है. तो उसका आंसर आप yes और no में लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे yes I like to read about them. Okay, so that is the answer. Now second one is which is your favorite dinosaur. Now what do you think, what is this WH question है ना. which मतलब WH क्वेश्चन. तो उसका जो आंसर है वो क्या दिया है? आई लाइक द वंस विथ रियली लॉन्ग नेक्स. सो इट्स नॉट नेसेसरी के WH वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर येस और नो में हो सकते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट. सिर्फ डू, डज, डिड या फिर इज, एम, आर है, वॉज, वर है, उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके आंसर येस और नो में आ सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म येस एंड नो क्वेश्चंस. क्योंकि ये विच वाले जो क्वेश्चन है वो तो कॉमन है. ठीक है. वो हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये वाले डू, डज वाले, मतलब ये. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक येस और नो क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 89. Okay, so let's see the first one. इफ़ द वर्ब इज़ अ बी वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया बी वर्ब. ठीक है. अगर वो बी वर्ब है, और वो बी वर्ब कौन से आएंगे? इज़, एम या आर हो सकता है. राइट. या फिर वॉज और वर हो सकता है ना. तो ये क्या है? आपके बी वर्ब्स है. और अ मॉडल वर्ब जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा,
कैन, कुड, मे, विल, वुड, राइट। ये सारे मॉडल वर्ब्स है जो हमने अभी लास्ट ही चैप्टर में पढ़े हैं। तो हम अगर उसको लेके क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू मूव दैट वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब हम उस वर्ब को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो वर्ब्स है इज, एम, आर, वॉज, वर और मॉडल वर्ब्स है, उनको हम जब क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो सारे वर्ब्स हम लोग बिगिनिंग में लाते हैं और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। मतलब उसका फॉर्मेशन क्वेश्चन का ऐसा हो जाता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे वर्ब ये सारे भी हो सकते हैं और ये वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला, जया एंड सेतु आर फ्रेंड्स। सो हियर यू कैन सी आर इज द बी वर्ब। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस फर्स्ट। तो आर हमने पहले ले लिया और हमारा जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे कौन है हमारा सब्जेक्ट, जया एंड सेठू, वो उसके बाद लिख दिया, आर जया एंड सेठू फ्रेंड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, काफ़ी सिंपल है एंड ईजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपका वर्ब आगे ले लेना है और सब्जेक्ट पीछे लेना है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जया कैन क्लाइंब tall trees. Now here they have used the model verb can. So what can we do? We can bring can first. यहाँ पे अभी can किसका काम कर रहा है, can यहाँ पे helping verb का काम कर रहा है, ठीक है। हमारे पास verb है दूसरा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले can लिखेंगे, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद हम लिखेंगे हमारा मेन वर्ब, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पे कैन किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। यहाँ पे कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सो जया कैन क्लाइंब टॉल ट्रीज। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी वुड बी राइटिंग फर्स्ट कैन, देन हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, जया, तो उसके बाद आएगा जया। कैन जया क्लाइंब, दैट इज़ द वर्ब इन द बेस फॉर्म। तो जब भी हम मॉडल्स से क्वेश्चन बनाते हैं उस वक्त हमें हमारा जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में ही रहने देना है, जैसे कि हमने पढ़ा था, है ना। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो फॉर्म में वर्ब होता है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। कैन जया क्लाइंब टॉल ट्रीज। सो यू हैव सीन ओवर हियर, यहाँ पे आर, सॉरी, यहाँ पे आर को पहले ले लिया है और यहाँ पे कैन को पहले ले लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर सेंटेंस में बी वर्ब नहीं है और एक्शन वर्ब है, इफ द वर्ब इज एन एक्शन वर्ब, एड डू, डज और डिड टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड कीप द वर्ब इन द बेस फॉर्म। सी, ये चीज़ क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस में एक्शन वर्ब सिर्फ होता है और क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, डू, डज और डिड। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन से वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारे पास एक एक्शन वर्ब तो है ही सेंटेंस में। तो ये डू, डज और डिड क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और आपका जो एक्शन वर्ब है वो जिस किसी टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है या आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन आपका ये जो वर्ब है उसका फॉर्म कौन सा हो जाएगा, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब पहला वाला फॉर्म जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। द फर्स्ट इज दे प्ले द पियानो एवरी डे। नाउ एज यू सी, यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक एक्शन वर्ड है, वो है प्ले, ठीक है। तो हम प्ले से तो क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डू, डज या डिड ऐड करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि डू कब यूज़ करते हैं, डज कब यूज़ करते हैं, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि हम डज यूज़ करते हैं, वी यूज़ डज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी एंड इट, ठीक है। वी यूज़ डज विथ ही, शी एंड इट, हम तीन के साथ यूज़ करते हैं, राइट। और डू किसके साथ यूज़ करते हैं हम लोग, बाकी सारे प्लूरल्स के साथ, जैसे कि यू है प्लूरल में, फिर वी है,
उसके बाद दे है, और एक्सेप्शन में आ जाता है आई भी। आई भले ही सिंगुलर है, फिर भी हम आई के साथ भी डू यूज़ करते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। ये जो सेंटेंस का क्वेश्चन बनेगा वो होगा डू दे प्ले पियानो एवरी डे। वी यूज्ड द वर्ब डू, उसके बाद हमने लिखा अपना सब्जेक्ट एंड देन द वर्ब विच इज़ इन द बेस फॉर्म। इसके अंदर भी बेस फॉर्म में ही है वर्ब, इसीलिए वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए हमने उसके साथ डू यूज़ किया है। लेट्स सी द सेकेंड वन। Jaya lives in a small village. Now as you see over here, Jaya is a third person singular, ठीक है। तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम, does। उसके बाद है जया जो हमारा सब्जेक्ट है, does Jaya live। Now as you see over here, यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो बेस फॉर्म नहीं है, वो एस वाला फॉर्म है, राइट। बिकॉज दैट इज़ अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विच वी ऑलरेडी स्टडीड बिफोर, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब के अंदर हम लोग एस का साउंड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे है जया लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। सो व्हेन वी मेक अ क्वेश्चन इट बिकम्स डज जया लिव इन अ स्मॉल विलेज। सो ये लिव क्या है, हमारा बेस फॉर्म है, ठीक है। और हमने जया यूज़ किया है सब्जेक्ट, उस वजह से हमने डज यूज़ किया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Grandma liked the CD. Now here the word or the verb liked is in past tense, ठीक है। आपका जो वर्ब है ये liked वो क्या है, past tense में है। तो जब आपका सेंटेंस past tense में होता है तब आप do और does नहीं यूज़ करते हो, did यूज़ करते हो, ठीक है। और उसके साथ भी जो आपका वर्ब है वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, बेस फॉर्म में आ जाएगा। तो grandma liked the CD, तो when you change it it becomes did grandma liked the CD, okay। So I hope you are clear with this। And the third one is if the verb is has or have, then we have to add do, does or did to the beginning of the sentence and change the verb to have। अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब के फॉर्म में हैज़ या हैव होता है तो आप जब क्वेश्चन बनाओगे तब ये यूज़ करोगे, और उसके साथ अगर सेंटेंस में हैज़ भी है तो भी उसको निकाल के आप हैव यूज़ करोगे, ठीक है। और डू और डस किसके बेसिस पर यूज़ करना है, वापस सब्जेक्ट के बेस पर। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप डज यूज़ करोगे और बाकी सबके साथ डू यूज़ करोगे, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। फ्रेडी हैज़ 3 heads। नाउ हियर द वर्ब इज हैज़, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम डज यूज़ करेंगे। डज फ्रेडी हैव 3 heads। यहाँ पे हैज़ है, उसको निकाल के हमने हैव यूज़ किया है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है माई फ्रेंड्स हैव होमवर्क टुडे। नाउ हियर योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ डू। Do my friends have homework today? And last one, Lalit had a real telescope. Now, you need to remember one thing, that when you have a past tense, had मतलब past tense हो गया आपका sentence, ठीक है। तो अगर sentence past में है तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, did, और उसके साथ भी वो had क्या बन जाएगा, हैव, ठीक है। उसमें भी जैसे हैज़ का हैव कर दिया, हैव तो हैव ही रहेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में हैड है जो पास्ट टेंस है तो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले डिड और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हैव। डिड के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे पहले और उसके बाद लिखोगे हैव, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा डिड ललित हैव अ रियल टेलीस्कोप। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर क्लियर विद द फॉर्मेशन ऑफ yes and no questions with different verbs. So in next video we would be doing the exercise. Till then, take care and see you soon.